السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان وسیم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اس ٹائم میں نگین لیک کے اندر ہوں، اور میرے ساتھ جو اس ٹائم مہمان خصوصی ہیں جن سے ہم بات کریں گے ہاؤس بوٹ کی خصوصیات کے اوپر۔ جو اس ٹائم ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں ان کا نام ہے یعقوب، جو ہاؤس بوٹ ایسوسیشنز کے اسپوکس پرسن ہیں، اور اکثر آپ دیکھتے رہتے ہو کہ یہ میڈیا کے اندر اکثر اپنے آرٹیکل ہو یا ہاؤس بوٹ کی کوئی بھی چیز ہو اس کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے یعقوب صاحب کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں دن کی بات سچ کے ساتھ۔ آپ کا خیر مقدم ہے سین اس میں یعقوب بھائی۔ شکریہ وسیم بھائی۔ یعقوب بھائی، آپ مجھے بولو کہ آپ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ہاؤس بوٹ چلاتے ہوئے، یا کتنا ٹائم ہو گیا کہ لوگوں کو آپ یہاں پہ رکھ رہے ہو، کیونکہ آپ ایک ایسا پیغام دے رہے ہو جس پیغام کو ہم لاوا کمیونٹی کریں گے۔ جی، سب سے پہلے میں یہ بولوں کہ یہ جو ہاؤس بوٹ ہے اس کا وجود جو ہے وہ 1888 میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہمارے پردادا تھے مرحوم محمد سبحان دونو صاحب، تو انہوں نے 1916 میں اس کی بنیاد ڈالی تھی ہاؤس بوٹ کی۔ یعنی یہ جو ہاؤس بوٹ ہے، جو کمرشل یونٹ ہے، اس کی بنیاد 1916 میں ہمارے خاندان میں ہمارے پردادا صاحب نے مرحوم محمد سبحان دونو نے ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس کو فالو کیا تھا ہمارے مرحوم جو ہمارے دادا تھے، اور ابھی میرے جو والد صاحب ہیں جو حیات ہے ابھی، تو انہوں نے اس کے بعد مجھ پہ یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ اس کو اوور ٹیک کریے گا۔ تو قریباً ہماری فیملی پہلی فیملی ہے ان ہاؤس بوٹ بزنس میں۔ جتنے بھی یہاں پہ ہاؤس بوٹ والے ہیں، تو ہماری فیملی پہلی فیملی جنہوں نے 1916 میں 2016 میں 100 سال مکمل کیے ہیں۔ آپ مجھے بولو کہ آپ کی جو فیملی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ تیسری صدی ہے جو ہاؤس بوٹ کے اندر آپ آ رہے ہو۔ آپ کے بعد آپ کے فیوچر بچے جو ہوں گے وہ بھی ہاؤس بوٹ میں، ایسا لگتا ہے کہ چوتھی جو آپ کی پشت ہوگی وہ ہاؤس بوٹ میں آئی۔ آپ مجھے بولو یعقوب بھائی کہ کیرلا ہاؤس بوٹ اور جموں ہاؤس بوٹ میں کیا اندر ہے؟ جو کیرلا میں ہاؤس بوٹ ہے، اگر آپ صرف 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے میں آپ کو لے لوں، تو یہاں پہ اس ٹائپ کے ہاؤس بوٹ ہوا کرتے تھے جن کو ہم کھچو کہتے تھے۔ تو شاید اگر کبھی کبھار آپ کو احمد ظریف سے بھی ملاقات ہوگی، وہ اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع بھی کیرلا اور یہاں کے ہاؤس بوٹ کے بارے میں، تو میں اسی کو آپ کو تھوڑا بریف کر دوں گا۔ تو وہ جو ہاؤس بوٹ ہے اس میں ایک چھوٹا سا ہاؤس بوٹ ہے جس میں 2 بندے جا سکتے ہیں، 4 بندے جا سکتے ہیں، پھر وہ ان کو بیچ سمندر میں لے جا کے، جس کو بیک واٹرز کہتے ہیں۔ جہاں تک یہ ہاؤس بوٹ ہے تو اس میں باقاعدہ ایک ڈائننگ روم ہوتا ہے، سٹنگ روم ہوتا ہے، بیڈ رومز ہوتے ہیں، اور خاص کر جو سب سے مین اس میں جو جو جان ڈالنے والی چیز ہے وہ ہے افیکشن، فیملی افیکشن۔ جیسے کہ ہر ہاؤس بوٹ کے پیچھے اپنی فیملی ہوا کرتی ہے ابھی بھی۔ تو جیسے بھی کوئی گیسٹ آتا ہے، وہ ہمارے گھر میں بھی آتا ہے، تو اس کو ہم وہاں پہ قہوہ، جو ہمارا کلچرل چائے ہے، وہ پلاتے ہیں، یا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے کچن میں جا کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤس بوٹ، جس کو میں نے کہا کہ اگر کشمیر ہندوستان کی شان ہے، تو یہ جو ہاؤس بوٹ ہے یہ کشمیر کی شان ہے۔ تو یہ جو یونیک ووڈن اسٹرکچر ہے، یہ ایسا ہاؤس بوٹ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ لوگ جہاں پہ بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ہوٹلز وہاں پہ چوز کرتے ہیں، لیکن جب وہ کشمیر آتے ہیں اور جو کوئی بھی اپنا کشمیر کا پروگرام بناتے ہیں یہاں پہ ہالیڈیز کے لیے یا ہنی مونز کے لیے، تو وہ پہلی چوائس ان کی یہی رہتی ہے دماغ میں کہ ہم ہاؤس بوٹ میں ہی رہیں گے۔ تو یہ جو ہاؤس بوٹ ہے یہ ایک یونیک ہاسپٹلٹی یونٹ ہے جو آپ کو شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ آپ مجھے یعقوب بھائی یہ بات بتاؤ کہ آپ کے ہاؤس بوٹ کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے دادا نے یہ کام سٹارٹ کیا، اس کے بعد آپ کے دادا نے یہ پردادا نے سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد آپ کے دادا نے کیا، پھر اس کے بعد آپ کے فادر نے کیا، پھر آج آپ کر رہے ہو۔ مجھے بولو کہ 100 سال پورے ہو چکے ہیں، آج تک آپ کے جو ہاؤس بوٹ پہ آئے کون ایسے لیجنڈ پرسنالٹی، چاہے ہم فارین کی بات کریں یا اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، کون یہاں پہ آیا؟
देखिए जब ब्रिटिश का रूल यहाँ पे हुआ करता था, जिन सालों में हमारे मरहूम दादा इसमें काम करते थे, तो उनमें जो हाई डिग्निटीज़ हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम पे, तो वो ठहरी है। और मैं अगर अपने हिंदुस्तान की बात करूँ, जो यहाँ के खुसूसी चेहरे या ख़ास चेहरे या हाई डिग्निटी लेवल के जो लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो उनमें से मैं कहूँगा कि जो माधवराव सिंधिया जी थे, जो दो मरतबा यहाँ पे मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन टूरिज़म मिनिस्टर भी और सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, और उससे पहले वो महाराजा ऑफ ग्वालियर थे, तो वो 2 मरतबा हमारे हाउस बोट में ठहरे हैं। और उसके अलावा शमी कपूर जी भी रहे हैं, लता मंगेशकर भी रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी रहे हैं, राजेंद्र कुमार जी रहे हैं, नूतन जी रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी लिस्ट है। जुबिन मेहता जी रहे हैं, जो यहाँ पे कंसर्ट करने के लिए शालीमार में आए थे, तो जब हम उनसे मिले तो उनको वो 1973 की याददाश्त वापस आई। जब मैंने उनको उन्होंने जो रिमार्क्स लिखा था रिमार्क्स बुक पे, तो उन्होंने वो रिमार्क्स बुक का जो पेज है, मुझसे रिक्वेस्ट करके बोला कि उनकी मिसेज़ ने कि ये मैं अपने घर में अपने फ्रेम में रखूँगी, क्योंकि मैं ये ताकि सबको पता चले कि मैं एक अपने हनीमून के लिए, जब मैंने हनीमून डेस्टिनेशन चूज़ किया था कश्मीर, और मैं हाउस बोट में रह चुकी, तो वो फ्रेम में जो ये लेटर रहेगी, सब देखेंगे कि मैं हाउस बोट में ही अपना हनीमून। ये बताओ कि आपके हाउस बोट जो है क्या क्या नाम है उनका? देखिए, हमारे 3 हाउस बोट्स हैं। एक है गोल्डन फ्लावर, दूसरा है न्यू गोल्डन फ्लावर, और तीसरा है फ्लोटिंग हेवन। तो अभी ये तीनों जो आपने जहाँ से अक्सबंदी शुरू की है, वहीं पे वाक़ा है। आप मुझे बोलो, ये कहना मुनासिब होगा कि मछली जो है झील की रानी है, तो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है, इस तरह हाउस बोट के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे जिनका जन्म होता है, जो पढ़ते हैं, बड़े होते हैं हाउस बोट के अंदर, वो अगर हाउस बोट से उनको निकाल कर अगर दूसरी किसी जगह पर शिफ्ट किया जाए, वो तो इसके सिवा वो रह सकते हैं क्या? देखिए, एक मरतबा हम डिस्कशन कर रहे थे डल के प्रिजर्वेशन के बारे में, तो यहाँ फॉरेनर्स से एक ग्रुप आया था, लेडीज़ ग्रुप, तो उन्होंने वो शुरू किया था। और खुशकिस्मती ये भी थी कि उसी दिन यहाँ पे पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता था। तो जब मेरी बारी आ गई और मैंने अपना स्पीच डिलीवर किया, तो मैंने कहा पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग हैं वो मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ जो है वो यही झील है, क्योंकि यहीं पे हम पैदा हुए हैं, यहीं पे हमारा बचपना हुआ है, यही हमारी जवानी बीत गई है, अभी हमारी शादियाँ भी इधर ही हुई, बच्चे भी हुए, और ये जो हमारे बुढ़ापा है अभी इधर भी हुआ, और जनाजा भी यही झील से ही उठेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस झील के साथ हमारी कितनी अटैचमेंट है। यकूब भाई, मुझे आप एक और बात बताओ कि कोविड-19 जो है, जिसने पूरी दुनिया को एक झुंझला कर रख दिया है जी, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम कोविड-19 अपनी पकड़ मजबूती से बना रहा है जी। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता, हवा के बगैर नहीं रह सकता, ऐसा लगता है कि कोविड को भी अपना पार्ट बना कर लाइफ में चलना होगा। तो 2019 में ये स्टार्ट हुआ, वुहान से ऐसे स्टार्ट हुआ, हिंदुस्तान में आया, पॉजिटिव केस ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोगों की डेथ भी हुई। तो इसका असर हाउस बोट के ऊपर कितना पड़ा, कितना नुकसान हुआ, उस सिलसिले में हमसे देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे कि आपने बात की और छेड़ी कोविड-19 की, कि करीबन 1 साल तो हो चुका है, अभी बीत चुका है, और हम उसी कोविड के शिकार हो रहे हैं। ये तो आसमानी वबा है, तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आसमान का ही रब इसको दूर करेगा इंशाल्लाह नज़दीक वक्त में। जहाँ तक ताल्लुक़ है हू एंड क्राई की, तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि हमें इतना हू एंड क्राई करना चाहिए इस कोविड-19 की, जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है या चलाया जा रहा है। देखिए, कोविड-19 है, तो अब हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें इसी बीमारी में और इसी वबा में ही जीना है। इसका इलाज कब ठीक होगा, कब इसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा होगा, अभी ये कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन अभी जब तक ये कोविड-19 है या चला जा रहा है, तो हमें अपने आप को अब तैयार करके रखना है। यहाँ तक कि यहाँ की जो सरकार है उनको भी लोगों से ये बूस्ट करना चाहिए, ऐसे एड्स करने चाहिए कि अब ये कोविड-19 जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, और अब हमें इससे लड़ना
नहीं चाहिए, बल्कि इसके एहतियात रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाने, और ये कोविड अपनी जगह, हमारी ज़िंदगी का जो रफ्तार है वो अपनी जगह, हमारे जो काम है, जो बिज़नेस है, वो एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनको चलाने का अलग तरीका अपनाना है हमें। तो मैं आपको बात एक बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इक़दाम उठा रही है। चाहे हम रैपिड टेस्ट की बात करें वो भी फ्री हो रहा है, चाहे हम कोविड वैक्सीन की बात करें वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फ्री हो रहा है। जितने भी देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली है, 45 ईयर के जो ऊपर लोग हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाकर वैक्सीन करवाना चाहिए। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, एहतियात बरतना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया, खासकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये आदेश दिए हैं कि हर एक जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से गुजरात तक, जितने भी यहाँ पे सिटीजन्स हैं उनको 45 के ऊपर से ये इंजेक्शन या वैक्सीन लगाना चाहिए। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि लगाना चाहिए। जहाँ पे आपको थ्रेट है लाइफ की, जहाँ पे आपको थ्रेट है कि अगर आपको खुदा न खास्ता किसी को अगर फैमिली में ये वबा का इन्फेक्शन लग जाता है तो उससे फिर उसकी पूरी की पूरी जो फैमिली है वो मुतासर हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि हम पूरी प्रिकॉशंस ले, मास्क अपने मुंह पे लगा दे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी अपनाए। और मैं विनती भी करता हूँ यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही 2 दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किए कि कश्मीर में नाइट कर्फ्यू यानी सेक्शन 144 उन्होंने ऑर्डर किया है। तो ये ऑर्डर सेक्शन 144 कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लगाना, ये मुझे नहीं लगा कि ये कोई लॉजिक है, क्योंकि आपको भी मालूम है वसीम भाई, यहाँ पे कोई रात का बिज़नेस नहीं हो रहा है, यहाँ के रात में दुकानें नहीं चलती है, और 9 बजे से ही लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। तो जहाँ पे उनको सेक्शन 144 लगाना चाहिए था, जैसे कि गुली लाला खुल गया तो आपने देखा कि वायलेशन ऑफ क्राइटेरिया हुआ, प्रोटोकॉल कहीं नहीं रहा, वहाँ पे जो लोग गए हैं बिना मास्क से और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर वहाँ पे बाग में एंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन को मद्देनज़र रखकर वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बरकरार रखना चाहिए। तो ये मेरी मैसेज रहेगी लोगों से कि वो वैक्सीन ले, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क यूज़ करे, जो सैनिटाइज़र है उसका भरपूर इस्तेमाल करे। और एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि जहाँ पे भी लोगों की भीड़ हो, नाइट कर्फ्यू से कोई फ़ायदा, ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट है डाक के, उन्होंने भी ये कहा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक किस में है कि आप गुली लाला में सोशल डिस्टेंसिंग रखवाइए, वहाँ पे लोग जो आ रहे हैं वहाँ पे मज़ा लेने के लिए, तो उनको मास्क लगवा दीजिएगा, वो ठीक बात है। शुक्रिया बात कर। आप देख रहे थे कि हमारे साथ जिस टाइम मेहमान खसूसी थे याकूब दीनू साहब थे, ये हाउस बोट एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन हैं और पैंथर्स पार्टी के मीडिया इंचार्ज भी हैं। इनका कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगीन लेक जो है, क्योंकि पानी जो होता है इंसान की ज़रूरियात होती है, पानी के अंदर गंदगी ना डालें, चाहे वो हम नगीन लेक की बात करें या किसी और चीज़ की, किसी और नदी नाले की बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का अहतमाम करें, क्योंकि ये जो है ये जीवन है हमारा। जिस तरह मछली का जीवन पानी होता है, इसी तरह इंसान का जीवन भी पानी होता है। हमारे साथ बनी रहिए एक नई वीडियो के साथ। अपने मेहज़बान वसीम को दीजिए इजाज़त। सलाम अलैकुम।